Hello friends, today's concept of discussion is changes in demand. When the demand for a commodity increases or decreases because of other factors, price remaining the same is called as changes in demand. आसान सी भाषा में जब चीजों का डिमांड बढ़ता है या कम होता है और उसके पीछे प्राइस नहीं होता है, कोई दूसरा फैक्टर होता है, उसे हम कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. For example, the demand for an iPhone because of the quality or prestige, the demand for pizza for the taste, the demand for medicines or a vaccine in case of emergency. Now we shall understand the difference between variation and changes. अगर प्राइस के वजह से डिमांड में उतार चढ़ाव हुए तो उसे हम बोलते हैं वेरिएशंस इन डिमांड. लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई फैक्टर के वजह से उतार चढ़ाव हुआ तो उसे हम बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड. इसका मतलब यह होता है कि चेंजेस इन डिमांड के लिए प्राइस मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन, एक्सेट्रा, दे मस्ट चेंज. There are two parts in changes in demand. The first one is increase in demand and the second one is decrease in demand. Point number one is increase in demand. Increase in demand refers to the increasing quantity demanded due to favorable changes in the factors like income, taste, preferences, habits, fashion, etc. but price remaining constant. The graphical representation of increase in demand. Here there is y-axis and this is x-axis. This is x, this is y, this is price in rupees, this is quantity demanded in suppose kg. Now this is the original price and this is the original quantity demanded. Point P कहीं भी चलेगा, point Q कहीं भी चलेगा. इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग. ज्वाइन करने के बाद दिस विल बी पॉइंट ए. अब क्या हो रहा है यहां पर? प्राइस इज रिमेनिंग फिक्स्ड, लेकिन क्या हो रहा है? दिस इज डिमांड, द ओरिजिनल डिमांड. प्राइस उतना ही है लेकिन डिमांड जो है पहले OQ था, अब डिमांड जो है वो बढ़ गया, मतलब डिमांड बढ़ गया, वो हो गया OQ1. डिमांड इतना था पहले, अब डिमांड और बढ़ गया तो एक नया डिमांड कर्व क्रिएट हो गया. एक नया डिमांड कर्व क्रिएट हो गया D1 जो ऊपर क्रिएट हो गया. A new demand curve is created above the original demand curve. It shows that price is remaining the same, but the quantity demanded, first it was OQ, now it is increased and it has become to OQ1. Once again, you can look at the diagram that the price is the same, but the demand is C. First it was OQ, now the demand has increased. It is increased. Why? It is increased because of other factors than price. Price is remaining the same. हो सकता है ये जो प्रोडक्ट का डिमांड होगा ये फैशन में नहीं था पहले, अब फैशन में आ गया रहेगा. तो फैशन में आ गया रहेगा तो प्राइस उसका उतना ही है लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया. प्राइस सेम है लेकिन उसका डिमांड बढ़ गया. क्यों डिमांड बढ़ गया? क्योंकि वो फैशन में आ गया. पॉइंट नंबर 2 इज डिक्रीज इन डिमांड. Decrease in demand refers to the decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like taste, income, habits, fashion, population, etc. But the price is remaining constant. The graphical representation of decrease in demand. Once again, this is your y-axis, this is your x-axis, x-axis, y-axis. Here there is price in rupees. Here there is quantity demanded in kg. Now once again you can take a point P here anywhere, you can take a point Q, you can join this. This is your original demand curve DD. Now what happens here? It is decrease in demand. Decrease in demand मतलब पहले डिमांड था OQ, अब डिमांड कम हो गया तो डिमांड हो गया सपोज OQ1. डिमांड कम हो गया. डिमांड कम क्यों हो गया? प्राइस के वजह से कम हुआ क्या? नहीं, प्राइस इज रिमेनिंग द सेम. मतलब एक डिमांड को नया बनाएंगे हम लोग, बट वो नया डिमांड को कहां बनाएंगे? नीचे बनाएंगे. दिस डिमांड कर्व इज अ न्यू डिमांड कर्व व्हिच इज बिलो द ओरिजिनल डिमांड कर्व. इंक्रीज इन डिमांड में याद है ऊपर आ रहा था क्योंकि डिमांड बढ़ रहा था, इसमें डिमांड कम हो रहा है इसके लिए इधर आ रहा है. द लॉजिक इज सेम. द लॉजिक इज सेम. व्हाट?
द प्राइस इज रिमेनिंग द सेम, प्राइस सेम है, लेकिन पहले उसका डिमांड इतना हुआ करता था, इतना हुआ करता था, अब डिमांड उसका कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस कम हुआ नहीं उसका, या प्राइस बढ़ा नहीं, क्योंकि वो चीज जो है वो पहले फैशन में थी, इसके लिए उसका डिमांड इतना हो रहा था, अभी आउट ऑफ फैशन हो गई तो उसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो उसका डिमांड कम हो गया, प्राइस उतना ही है लेकिन उसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, OQ1 हो गया, पहले इतना था अभी कम हो गया। तो एक नया डिमांड कर्व बनेगा D1 बिलो द ओरिजिनल डिमांड कर्व।